नमस्कार। मैं हूँ नीलम दवे। आप सभी के साथ एक बार फिर से एक ऐसी महान हस्ती के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा सद्भाग्य है कि आज ये महान हस्ती हमारे साथ है इन डालस फोर्ट वर्थ और विथ फाइनेंशियल लिसनर्स। स्वामी विज्ञानंद जी एक ऐसा नाम है जो एक महान धर्म उपचारक है। उसी के साथ उनकी वाणी, उनके विचार हमारे हिंदुइज्म के लिए, हमारे धर्म के लिए वैश्विक मंच पर, वैश्विक स्तर पर लाते हैं और हमें उजागर करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जिससे शायद हम अनजान है। वेद की बात हो, धर्म की बात हो या पुराणों की बात हो, स्वामी विज्ञानंद जी से बेहतर कौन हो सकता है। और आज में ये मेरा सद्भाग्य है, फनेशा रेडियो का सद्भाग्य है कि मैं स्वामी जी के समक्ष बैठी हूँ और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। विल टॉक अबाउट हिज लाइफ, विल टॉक अबाउट हिज बुक एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज स्पिरिचुअल जर्नी राइट हियर विद स्वामी जी। स्वामी जी, नमस्ते। नमस्कार, आपका स्वागत है डालस फोर्ट वर्थ में। धन्यवाद। And we are so honored and we are so blessed to have you here in Dallas Fort Worth. So it is such a lovely and it's such a blissful thing to see you here right here. And you just had an event here, Yeah, just finished. just finished the event, and we have heard so much about you. बहुत आपकी तारीफ सुनी है, बहुत आपके विचार सुने हैं, आपकी बुक्स हमने पढ़ी है। तो स्वामी जी, पहले ये बताइए कि आपके जीवन में एक ऐसी कौन सी घटना थी, कौन सा क्षण था जो जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, कि आपको लगा कि आपके लिए यही एक मार्ग है जिसे आप चलना चाहते हैं। जो क्या है कि जब मैंने अपना हिस्ट्री पढ़ा, जी हिंदू हिस्ट्री पढ़ा, so that was a realization for me first, if you see Bharat on modern recorded history, we have a first attack on our border was Alexander. ट्रू He came 326 BCE. राइट Then you have Alexander, then Greek, Scythian, Parthian, Kushan, जी Sakun. जी जी 900 years our ancestor fought to defend. एग्जैक्टली Then just we have finished war with them. Then we have Arab, Turk, Mughal, Mongol, मुगल all those डायनेस्टी। जी came. जी जी We fought 1100 years. And a fight was going with them. Then we have a Portuguese, Dutch, French, British. बिल्कुल So almost 2300 years our ancestor fought to defend, to live with the dignity and respect. राइट And because of their sacrifice, we are now what we are now. जी Our contribution is zero. Their sacrifice is more. राइट So that came in mind. They have sacrificed for ourselves. So we also have to do at least something. So therefore, that was turning point in my life. Therefore, I thought this is best way to serve the dharma and enlighten ourselves. जी। So from your childhood days, Yeah, would you not say childhood there. You cannot say childhood when grown up. you were grown up and you do have an engineering degree? Yeah. So that is such a contrast because you have something which you could have gone further in your career, but yet you chose something for ourselves, for our community, for Hinduism. So how did you manage? How did you balance that? See, once decided there are many engineer, one engineer is less is not going to change more. Right. So once I decided, then decided, now this is the path I have selected and I will do the work and I choose this path. So first I traveled across Bharat as a begging bowl, as a wandering monk. And I went to Gurukula, studied there, and then came back again in the field to serve the society. वाह वाह, and it is our blessing I think in form of your name कि आप यहाँ पर आए हमारे संसार की जो जितनी भी हिंदुइज्म के लिए जो आपने कहा, right, that we always had somebody external forces who came। सोमनाथ का अगर मंदिर की बात कर ले या किसी भी मंदिर की बात कर ले, सोमनाथ is हमेशा हमने विध्वंस ही देखा है। हाँ। हमारे हिंदुइज्म पे, हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पेशावर से लेकर के, जी जी, पेशावर माने जो आज पंजाब पाकिस्तान वहां ऊपर से लेकर के जी, और वेस्ट बंगाल तक नॉट ए सिंगल हिंदू टेम्पल वाज इंटैक्ट। ट्रू। हाँ जी, और सोमनाथ की 17 बार, सोमनाथ तो बार बार हुआ, सोमनाथ तो बार बार हुआ। हुई थी। तो ये जो आपने एक मार्ग लिया, यू डिसाइडेड टू बी अ सन्यास एंड लीव बिहाइंड योर करियर, योर फैमिली, योर अटैचमेंट, फिजिक। हाउ इज इट, because you are also so active in public life, you are sannyasi yet you are so active in public life, you are writing books, you are making sure that everybody is aware of what we have, the treasure.
So again, that is something that how do you strike that balance? My balance is there. No, I'm not attached to the family, left the family. Now I'm sannyasi, I'm independent, जी जी focusing 100% on two things, pay my debt to my ancestor, जी because their debt is big on me because of their sacrifice who we are now. So at least something I should repay in this life. वाह. That is the source of my work. It's like a भगीरथ हाँ कि भगीरथ ने जैसे सोचा था to bring Ganga on the earth to pay the debt to an ancestor. So you are one sort of भगीरथ and you have taken a task which is also भगीरथी कार्य कि हिंदू धर्म का प्रचार करना वैश्विक मंच पे वैश्विक स्तर पर. How do you find it difficult? अगर let's come back to your book Hindu Manifesto. Tell us something about that. What inspired you to write this book? See, when I studied in the Gurukul Sanskrit, जी when I studied Shastra there, I realized that knowledge contained in the Shastra is very relevant, modern, जी contemporary. जी But unfortunately, all those knowledge, किसी ने भी nobody has presented in a structured manner for the modern society. जी So thinking on that line, मैंने उसी लाइन पर सोचते हुए मैंने शास्त्रों से 8 सूत्र निकाले, है ना. वाह कि सूत्र क्या है, सब शास्त्रों में क्या होता है, सूत्र में ही बहुत मीनिंग बिल्कुल समाहित होता है. जी जी तो हमने 8 सूत्र निकाले हैं. पहला सूत्र धर्मस्य मूलम अर्थ. हम्म. इसका इंग्लिश ट्रांसलेट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. यानी हिंदू क्या चाहता है, एवरीबडी शुड बी प्रॉस्परस, Everybody should be happy. सर्वे भवन्तु है सुखिनः. ना. सर्वे भवन्तु सुखिनः कैसे होगा, जब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं जी. होगा तो कैसे सुखी होगा, है ना. जी, इफ यू आर जी. स्ट्रगलिंग फॉर द मीन ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकते. कहता है पहले प्रॉस्पेरिटी, है ना. Right. एंड वेल्थ क्रिएशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए धर्मा एक्टिविटी, ना. जी जी धर्मा का परस्यूट है. तो पहला चैप्टर हमने इकोनॉमी के ऊपर लिखा है Prosperity. कि हमारे यहाँ वेल्थ का क्या महत्व था, वेल्थ जनरेशन क्यों इम्पोर्टेंट था, हिंदू वेल्थ जनरेशन के पीछे फिलॉसफी क्या है. क्या है, जी. हमारा है कि वेल्थ क्रिएट तो करो लेकिन शेयर भी करो. कहते हैं सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संक्रिय, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड, है ना. वाह तो ये इकोनॉमिक फिलॉसफी है. फिर इसके बाद हमने लिखा है कि हम गरीब क्यों हो गए, ना. तो एक विल ड्यूरा की पुस्तक है केस फॉर इंडिया, बहुत फेमस किताब है, जी जी जी. सबको पढ़ना चाहिए. उसका समरी दिया कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे हमारे देश को लूटा. राइट. फिर एंगूस मेडिसिन का डेटा दिया कि वंस वी वर वेरी रिच कंट्री, है ना. सोने की चिड़िया हाँ जिसे हाँ, कहते थे. जी. अब हम गरीब हो गए. जी. फिर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम है आरसी दत्त की, उसका भी समरी दिया कि पीपल शुड नो दैट. राइट राइट. तो दूसरा जो सूत्र है इसका शत्रुंजय प्रजा रक्षा, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन, कि वंस यू हैव ए प्रॉस्पेरिटी इन योर सोसाइटी इन स्टेट एंड नेशन, नाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट, है ना. तो तभी हो सकता है शत्रुंजय, पहले शत्रु को डिफीट होना चाहिए, है ना, डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, जी. तभी विजय मिल सकती मिल सकती. बिल्कुल. अब बिना विजय मिले शत्रु को डिफीट डिस्ट्रक्शन किए Prosperity. आने नहीं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा सिटीजन की नहीं होगी. जब सिटीजन की जनता की सुरक्षा नहीं होगी तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ आएगी, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहले चीज है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी. राइट. तो उसके लिए इनको डिफीट करना जरूरी है. इसमें जी. हमने हाईलाइट्स किया है कि हिस्टोरिकली हम लोगों ने शत्रु के ऊपर दया किया है, इसके कारण से हमारे सिविलाइजेशन स्ट्रगल रहा. ये हमारा फॉली है. राइट. शत्रु पर कभी दया नहीं करना चाहिए, जी. शत्रु को तो डिस्ट्रॉय करना चाहिए. ये हमारे शास्त्र कहते हैं शत्रु को जाकर घर में घुस कर मारो, है ना, तभी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी. देखो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जाकर मारा, है ना, तभी अमेरिका बचा. हम लोग को भी वैसे ही करना होगा, है ना. जी. तो दूसरी चीज है सेफ्टी, शत्रुंजय प्रजा रक्षा, और आज के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही रिलेवेंट है ना. जी जी. पृथ्वीराज ने शत्रु के साथ दया की, छोड़ दिया, है ना, तो चला गया. दोबारा प्रीपेड आया, धोखे से मार दिया ना, जी. पृथ्वीराज को पकड़ा तो छोड़ा नहीं उसने, नहीं. है ना. जी जी. तो इसलिए कहते हैं शत्रु के साथ दया कभी नहीं करना मत है. करो. जी. फिर हमने लिखा है, इसका अपेंडिक्स दिया है कि हम हिंदू लोग कैसे लड़े, है ना. तो एक राम गोपाल मिश्रा की किताब है इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स, और हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस सीताराम गोयल की. दोनों पुस्तकों की समरी दिया कि हमारे पूर्वज कैसे लड़े, कैसे लड़े थे. जी, है ना. जी, जी. और उसमें हमने कई विजय भी प्राप्त किए. हमने हारे भी लेकिन विजय भी प्राप्त की. नहीं तो मोहम्मद साहब के मरने के 70 वर्षों के अंदर इस्लाम ने अरब पेनिनसुला जो है ना कब्जा किया, सेंट्रल एशिया कब्जा कर लिया, आधा यूरोप आधा अफ्रीका कब्जा कर लिया. वही भारत में स्ट्रगल कर रहे. सिंध से दिल्ली आने में 500 साल लगे. तो आप सब तो हमारे पूर्वज कितने लड़े. जी. तो तीसरा सूत्र है
नास्ति विद्या समम चक्षु, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, है ना। किसी भी स्टेट समाज में वी हैव टू मेक श्योर दैट कि सारे लोगों को अच्छी शिक्षा Education, मिलना चाहिए और बिल्कुल, अच्छी शिक्षा अच्छी शिक्षा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए और इजीली सर्व सुलभ होना चाहिए इजीली ना, अवेलेबल, इजीली होना चाहिए, सर्व सुलभ होना चाहिए और एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, है ना। बिल्कुल, या इसका इंश्योर करना चाहिए। फिर इसके अंदर अपेंडिक्स में हमने दिया है ब्यूटीफुल ट्री का समरी दिया है, एक धर्मपाल जी की पुस्तक है, कैसे लोगों अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम, पाठशाला सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल। फिर हमने अपने यूनिवर्सिटी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, इन सब का भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा दिया है। जी। चौथा जो सूत्र है हमारा अविश्रम लोकतंत्राधिकार है, ये शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। उसमें क्या है, गौतमी ऋषि, गौतमी जो है कण्व ऋषि की पत्नी, गौतमी और कुछ ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर के दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं तो दुष्यंत का दरबार कोर्ट ओवर खत्म हो जाता है ना, जी। रेस्ट के लिए चला जाता है। तो वहां रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओ आप लोग तो अभी अभी आए, थोड़ी देर हो गया, राजा का दरबार तो उठ गया। लेकिन फिर कहती नहीं, लोकतंत्र अधिकार, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, इन डेमोक्रेसी हैव राइट, हाँ, किंग हैज नो रेस्ट, ही विल कम टू आस्क फॉर किंग, ही विल कम, ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल है कि हमारा डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। ये 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल है ना। इस 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल को कोई भी देश कहीं भी अप्लाई करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, है ना। बिना इसके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। फिर जो अगला 4 सूत्र सिविलिशन सूत्र है। पहला सूत्र है कि उसमें 5वां जो सूत्र है वो है अग्र एति युति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन। कि सिविलिशन को आप कैसे मेजर करते, हाउ यू मेजर ए सिविलिशन, नो नॉट इक्वली, हाउ यू रेस्पेक्ट everybody, no, how you respect women, how you treat your women, that is how you measure the civilization, है ना। इक्वलिटी क्या है, एक्स एंड वाई एक्सेस क्रोमोसोम है, बाकी उसमें तो कोई अंतर नहीं है, बायोलॉजिकली तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए तो हमारे हर का भी कॉन्सेप्ट है ना, हरिहर का भी कॉन्सेप्ट, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। आप ट्रीट, क्योंकि फेमिनाइन डिविनिटी है ना, वो तो मैं पुस्तक में लिखा, ये ऋषि कहते हैं महिला नहीं हो तो ऋषियों का भी कोई बस नहीं संतान उत्पन्न कर सकते, सृष्टि का सर्जन नहीं है ना, सृष्टि की सर्जिका है। तो रेस्पेक्ट की बात है। फिर रेस्पेक्ट में हमने देखा है कि ऋग्वेद में हमारे 28 महिला ऋषि हैं ना, उनमें 25 महिला ऋषियों का मंत्र दिया है जो ब्रह्मवादिनी ऋषि है ना। तो कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। गार्गी जी, जैसे कि गार्गी वगैरह नहीं, तो गार्गी एक नाम है, उसमें हमने, आप पढ़ेंगे ना मैं बुक में, हमारे बुक में पढ़ोगे तो 28 नाम दिए हुए हैं। लोपामुद्रा जो हमारे बृहद देवता का हमने नाम दिया, उनके मंत्रों को हमने दिया है। छठा सूत्र है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, है ना। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम ये है एक वर्णस्तलोक नहुष संवाद का है, महाभारत का है। समाज में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति वर्ण के बारे में नहीं होना चाहिए। और वर्ण का हमने अलग से मीनिंग बताया, वर्ण का मीनिंग क्या है। ये यूरोपियन लोगों ने लग दिया, वैसा नहीं। वर्ण का मतलब है जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको धर्म में लगा, अधर्म से दूर ले जाता है। जाति का अर्थ है जो समान तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो उसकी जाति है ना। और केवल जाति मनुष्य में नहीं होती है ना, अप्राणी लोगों में भी जाति होती है ना। जैसे जाति कैसे होते हैं, गौ बोलते हैं तो गौ का इमेज हमारे मन में बनता है ना कि 4 पैर हैं, हम पैसा होना चाहिए, हाँ। तो दैट इमेज हमारे मन में, उसी कहता है कि समान परस्वात्म का जाति है ना। बुद्धि में इमेज बनता है ना, वो उसकी जाति होती है ना। लोगों ने यहाँ प्रसव बाय बर्थ कर दिया, यहाँ प्रसव का बुद्धि में कॉग्निशन होता है माइंड के अंदर, उसको जाति कहते हैं। फिर कहते अप्राणियों में भी जाति है, केवल मनुष्य की बात नहीं, अप्राणी जो पशु नहीं, अप्राणी का अर्थ है पशु तो प्राणी, अप्राणी का अर्थ है जड़ वस्तु में है ना। अप्राणी जड़ वस्तु में कहता है कि समान एट्रीब्यूट्स हो ना, जैसे कहता है वहां धाना सस्कुल खाने की चीज है, तो आज के मान लो रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है ना, है ना, कैटेगरीज है ना। फिर कहता है जातीय हमारे यहाँ शब्द है ना, हमारे यहाँ की जाति से ऊपर जाति है जो ब्रदरहुड के सेंस में बनता है, जिसको बिरादरी बोलते हैं, जिसको नेशनहुड के सेंस में है। इसलिए आज भी बांग्लादेश में बोला बांग्लादेश जातीय पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो जाति का मतलब ब्रदरहुड है। फिर एक शब्द है ज्ञाति, गुजराती में ज्ञाति शब्द है,
वो कुल वंश के लिए कुल और है, वंश। लेकिन वो जाति के लोगों को बना, जाति को जाति बना दिया है लोगों ने। राइट तो ये इस तरह का जो गड़बड़ी हुआ उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सारी सारी जो भी गलत फहमियां हमारे हमने हिंदुइज्म में है हाँ। कि जो वर्ण व्यवस्था से लेके जातिवाद है, हाँ, नहीं सबसे नहीं, बड़ा एक ये भ्रम हो क्रिएट किया गया है। इसके ऊपर भी हमने इस पुस्तक के 3 पुस्तकों का हमने समरी दिया है। वाह कास्ट ऑफ माइंड, निकोलस डर्क की पुस्तक, उसका समरी दिया है, जी और वेस्टर्न फाउंडेशन कास्ट उसका समरी दिया है, ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड कास्ट इन मेडिवल इंडिया केसलाल की पुस्तक का समरी दिया हुआ है। जी हाँ। वेरी गुड। तो ये और तो हुआ है ये तो हमारे 6 सूत्र हो सूत्र हाँ। हुआ जी। और तो 7वां सूत्र है केयर फॉर नेचर। प्रकृति को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, टेक केयर ऑफ टेक केयर करना है, कि जिसमें हम रहते हैं तो हवा, पानी, नदी, जंगल, पहाड़, राइट पेड़ पौधे सबका केयर करना है। जी तो 7वां सूत्र है। और 8वां जो सूत्र है माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, हमें पैट्रियोटिक सिटीजन बनाना है, पैट्रियोटिक सिटीजन बनना चाहिए। धर्म, जन्मभूमि, कर्मभूमि दोनों हमारे इक्वली इतने लॉयल होना चाहिए। मातृभूमि हमारी हाँ, मातृभूमि तो हमारी मदरलैंड है, जी लेकिन जैसे अमेरिका में आप लोग हैं, ये आपके जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन कर्मभूमि है, तो हम लोग उतने इक्वली डेडिकेटेड कमिटेड टू द अमेरिका है ना। जी जी वैसे सब जगह पैट्रियोटिक सिटीजन नहीं होगा तो कोई देश आगे नहीं बढ़ बढ़ सका। सकता। तो ये हिंदू मैनिफेस्टो का जो 8 सूत्र है, इसका ये फाउंडेशन है, इसी के ऊपर सारा पुस्तक वाह। है। सो आपने कितना रिसर्च किया होगा स्वामी जी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 8 प्रिंसिपल्स ऑफ दिस हाँ, मैनिफेस्टो। हाँ, You have covered each and every aspect of हाँ, our Hinduism. yeah. So many different books. So instead of reading all those books, all those Puran हाँ, शास्त्र, ये सब book इसमें पढ़ मिल लीजिए जाएगा, और सब आपका इसके सारा सार सारा आ सारा जाएगा। सार हमारा और हिंदुइज्म सारा का। बहुत महत्वपूर्ण है, कंटेम्पररी है, जी जो जी फोकस है, इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आज के समय में रिलेवेंट प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं है। जिससे हमारे यूथ रिलेट कर हाँ, सके। रिलेट यूथ के लिए सबसे ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा है। एंड दैट ब्रिंग्स टू मी माय नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट यूथ कि यू नो वी हैव बीन ट्राइंग एटलीस्ट इन दिस कंट्री, यहाँ बहुत कभी कभार एक मुश्किलात हो जाती है, कठिन बात होती है कि यहाँ के बच्चों को हमारे भारतीय धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, उनको हमारे साथ जोड़ना हर एक माँ बाप की एक समस्या होती है। अगर वो ये पढ़ेंगे, क्योंकि उनके मन में बहुत सवाल होते हैं, तो इसका उत्तर है इसके जी अंदर, कि कैसे ये क्यों करना है, तो जो इसका उत्सुकता सारा होती है। उत्तर इसी के अंदर है। जी कारण क्या कि अमेरिका में भी अमेरिकन एजुकेशन को मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लोगों ने कब्जा कर दिया है, जी और वो एक पढ़ाई के नाम पर ब्रेन वॉशिंग होता है, बिल्कुल इसलिए अमेरिका भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना। राइट तो ऐसे समय हमने बच्चों को एक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, उनको देना चाहिए, जिससे कि उनको अंदर से जो है ना हिंदू धर्म के का लिए जो के मिथ है वो निकल जाए, और ट्रू असली एक्चुअल मीनिंग है उसको समझ सके। एसेंस ऑफ आवर हिंदुइज्म हाँ, इज हियर। सो दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, क्योंकि हमारे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो ये शायद पुस्तक सभी के लिए है, है। ये पुराण और यूथ वेद के लिए है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसके लिए भी है, जी। पेरेंट्स के लिए है, प्रीचर, सभी के लिए पुस्तक। आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, सब जगह जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ये पुस्तक आप जो हमें भेंट दे रहे हैं हमारी संस्कृति के लिए। ऐसी और कोई पुस्तक आप लिखना चाहते हैं? अभी मैं लिखूंगा, ये अभी इंग्लिश में लिखा हूँ, इसके बाद इसका हिंदी करूंगा। अरे वाह। उसके बाद मेरा अगला पुस्तक हिंदू दी नेम, हिंदू दी आइडेंटिटी, इस पर मेरा अगला बुक है। तो हमारी पहचान जो हिंदुइज्म है उस पे आप लिखेंगे। तो उसमें भी क्या आप यही हमारे हिंदुइज्म के नहीं, यहाँ बताएंगे जो हमारे शब्द का मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, इटिमोलॉजी क्या है ना, ग्रामर क्या है, इसका सोशियोलॉजिकल मीनिंग क्या है, सब चीज लिखूंगा। सो आप अगर 18 पुराण ना पढ़े, 4 हमारे जो शास्त्र ना पढ़े, लेकिन अगर स्वामी जी की ये एक पुस्तिका पढ़ ले, तो ये आपको इससे अच्छा आपको सार कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 15 वर्षों का रिसर्च है जी। बहुत। और मुझे आपसे आज बातें करके इतना आनंद हो रहा है कि जो बातें शायद मैं नहीं जानती थी हिंदुइज्म, ये पुस्तक से मुझे मिलेगी। और आपसे सिर्फ कुछ मिनट्स बात करके मुझे इतना सारा ज्ञान मिल रहा है। स्वामी जी, आपने पुस्तक के लिए कहा, आपने हिंदुइज्म के लिए कहा, यूथ के लिए कहा, आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी जो मानसिकता है आजकल, बहुत कुछ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अराउंड अस एवरीबॉडी, एवरीथिंग इज कैओस, स्ट्रेस, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोई एडवाइस आप क्या है कि देखो, सोशल मीडिया टू मच फोकस नहीं करना चाहिए, स्क्रीन टाइम बहुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो ह्यूमन है ना, कॉग्निशन है हमारा माइंड, और उसका स्क्रीन टाइम से डिस्टरबेंस होता है। तो हमें जो चीज रियल चीज है उस पर फोकस करना चाहिए ना। और ज्यादा जिसको कहते हैं ना, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति। तो आहार क्या है कि अच्छा खाते हैं ना, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा श्रवण का, हर चीज आता है ना उसके अंदर। बिल्कुल।
तो आप गलत सोशल मीडिया पर रबिश सुनेंगे तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, तो उस सब से दूर होना रहना चाहिए। चाहिए, है ना। जी उससे बचना चाहिए, और फिर आपको अच्छी नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, तो आपको हेल्प करेगा, है ना। जी जी जी। नहीं, बहुत आपका अच्छा सुंदर संदेश है। और कोई आपकी भविष्य की योजनाएं बताएं, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द बुक्स, एनीथिंग एल्स नहीं, दैट अभी यू आर अभी तो देखो, अभी मैं ऑलरेडी बहुत सारा चीज कर ही रहा हूँ। हमारा जी। एक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, होता है, अच्छा जी। हर जी। साल होता है। इस साल वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एडिलेड में 2 अच्छा। और 3 अगस्त को है। अच्छा। तो जो सुनने वाले दर्शक हैं, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में जाएं, पार्टिसिपेट करें। जी। हमारा बड़ा अगला कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है, अच्छा। 2026 मुंबई में है, जियो कन्वेंशन सेंटर में है। अरे वाह। 18, 19, 20 दिसंबर है, और सारा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर है, worldhinducongress.org पर है सब। आपकी अध्यक्षता पे, और आप स्पीकर हाँ रहेंगे हाँ वहाँ हाँ, पे नहीं मेन। स्पीकर नहीं, वो तो वहाँ 200 स्पीकर होते हैं। अच्छा। दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू राजेश। कॉन्फ्रेंस। वाह मोर वाह। देन 60 कंट्री के लोग होंगे वहाँ पर। जी जी। तो हमारा सौभाग्य रहेगा अगर हम वहाँ पे जा सके हाँ, और अरे तो वहाँ आप लोग को तो मुंबई वाले हो, आप लोग को तो जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो कर रही हूँ मैं बातें स्वामी जी से, स्वामी विज्ञानंद जी। जैसे नाम वैसे ही गुण। जैसे कि आपने सुना कि एक ही पुस्तिका में, जस्ट इन वन बुक, इट इज निष्कर्ष, इट इज अ कंक्लूजन ऑफ एवरी पुराण, एवरी शास्त्र, every manifesto that could be there in Hinduism. This is not only for us, this is for our kids, our youth, everywhere around us, whoever doesn't know about Hinduism. So मैं recommend करूँगी, मैं मेरे सारे फनेशा के लिसनर्स से, हमारी पूरी कम्युनिटी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि डू बाय दिस बुक। ये पुस्तिका आपके घर में रखिए। डू बाय दिस बुक फॉर योर किड्स, फॉर योर नेबर्स एंड फैमिली, टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म है क्या। स्वामी जी, आपसे बात करके इतना अच्छा हाँ, लग रहा है। ये नमस्ते। हमारा धन्यवाद है। It's such a blessed and divine moment to have you here in Dallas Fort Worth, and hopefully we'll see you again in Yeah, few years. yeah, I will आपकी come क्या next year. योजना है यहाँ नेक्स्ट ईयर डैलस भी में? आऊंगा, नेक्स्ट ईयर भी आऊंगा। बिल्कुल। So next year we will hope to take you at the radio station Yeah, and talk to you with yes. all our Phanesha But listeners before that, this book is available on the Amazon. They can go and buy and buy that and online. read this. Yes. And my request is that Hindu community in their group, they should discuss this book, and Hindu community should Hindu community should read this book and discuss this book. जी। जैसे कि बुक रीडिंग क्लब होती हाँ है, हाँ जहाँ पे वी कैन डिस्कस और चर्चा विचारणा हो हाँ सकती है हाँ कि आपका क्या ख्याल है इस बुक के हाँ, विषय में। बहुत बहुत अच्छा विचार है, एंड थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस बुक। हमारे धन्यवाद। जैसे कितने लोग होंगे जो हिंदुइज्म से इतने उजागर नहीं है, जो आप आज कर रहे हैं हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के ठीक लिए, है, फनेशा रेडियो के लिए, हमारी नमस्ते। पूरी कमेटी के लिए आपका धन्यवाद। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपकी सारी भविष्य की योजनाएं के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। एंड वंस अगेन दिस इज नीलम दवे फॉर फनेशा रेडियो। कीप लिसनिंग टू फनेशा रेडियो, और ऐसे बहुत सारे अच्छी इंस्पायरिंग लीडर्स और इंस्पायरिंग बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।